The undercover investigation has been carried out in good faith and in public interest. The organization and the journalist conducting the investigation are in no way associated or aligned with or against any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group named in the video or otherwise. Any reference, direct or indirect, made either to any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group, or to any association, proximity, enmity, rivalry, hatred for, towards, between any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group is purely for the purpose of the investigation. It should not be insinuated from the contents of the investigation that the organization or the journalist conducting the investigation has done so either to target or at the behest of any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group. References in the video made by the persons other than the journalist conducting the investigation to any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group are the sole prerogative and personal opinion of the respective persons. The organization and the journalist conducting the investigation do not intend to outrage, insult, wound, or hurt any religion or the religious sentiments, beliefs, or feelings of any persons or class or community while conducting the investigation. Viewers are advised that the videos have been transcribed to the best of our ability. Transcribing is a painstaking process and error-prone work. In case of any error, the video along with the audio should be referred to. Errors, if any, in transcribing are purely bona fide and unintentional. It should be remembered that subtitles are only an aid to the viewing process. Any misrepresentation or deviation of the editorial from the original documentary in Hindi as published on the official website of Cobra Post, or error due to translation into vernacular in news stickers, news bands, or any other visual element is the sole responsibility of the media channel carrying the story, whether in part or whole. पेड न्यूज, खास एजेंडा या प्रोपेगेंडा, क्या आज ये मीडिया में अपनी जड़ जमा चुका है? इसी तहकीकात में वरिष्ठ पत्रकार पुष्प शर्मा की मुलाकात पंजाब केसरी के हिमाचल दफ्तर में मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सुनील शर्मा से भी हुई। पुष्प ने सुनील को अपने एजेंडे के अलावा पोलराइजेशन, फायर ब्रांड हिंदू लीडर्स के प्रमोशन और पॉलिटिकल राइवल्स को थ्रेश करने की भी बात कही, जिस पर सुनील ने ठीक है के अलावा हाँ वो चल जाएगी, कोई इशू नहीं है कहकर अपनी रजामंदी भी दी। सीरीज चलेगी, वो चलती सैटरडे संडे। अब मैं एजेंडे पे आता हूँ कि वास्तव में हमारी पहचान क्या है और क्या हम लोग चाहते हैं। बेसिकली जो भी कुछ रहेगा वो तो संगठन का काम है। संगठन में जब कहता हूँ तो संगठन का मतलब है हिंदुत्ववादी, चाहे वो संघ हो, चाहे वो दुर्गा वाहिनी हो और चाहे बजरंग दल हो, कोई भी। भले ही पॉलिटिकल आर्म हमारा बीजेपी है, इलेक्शन तो उसी में लड़ना है, लेकिन हम लोग संगठन के साथ हैं। हम लोग तो विचार के लिए काम करते हैं। इलेक्शन के दिन फ़ायदा बीजेपी को होगा, हमारा बीजेपी को डायरेक्ट डीलिंग नहीं है। हम लोग संगठन का मतलब हिंदुत्ववादी ताकतें। मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर है कि हम बीजेपी से को डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं है। जो काम करेगी वो श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति करेगी। वाई श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति, वाई नॉट आरएसएस और या संघ? क्योंकि आपने कहीं भी देखा होगा कि संघ अपना नाम देकर के कभी काम नहीं करता। ठीक है, कुछ वजह है उसकी, वो आप भी समझते हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं। एक तो जो हमारा एजेंडा रहेगा हिंदुत्व का रहेगा, वो तो आप समझ ही गए, है ना। हिंदुत्व का मतलब श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति शिमला, क्योंकि जब हम बेंगलोर में काम करते हैं तो वहाँ का नाम लेते हैं। यहाँ करेंगे तो शिमला का रिलीज ऑर्डर होगा, पैन कार्ड वगैरह वहीं के किसी व्यक्ति का होगा। ठीक, और हिंदुत्व का एजेंडा रहेगा हमारा। और उसके अंदर प्रिंट के अंदर जैकेट पे एंड द कोर ऑब्जेक्टिव इज ऑफ द पोलराइजिंग द एंटायर इशू, क्योंकि हमें पंजाब में ताकत बनना है तो वी वांट टू कैरी द इमोशनल फील ऑफ हिंदुत्व, तो वो पोलराइज करने का एजेंडा रहेगा। दूसरा मेरी रिक्वायरमेंट है प्रोमोटिंग फायर ब्रांड हिंदू लीडर्स। आप डिजिटल भी हैं, डिजिटल में तो उसका शायद विज्ञापन उतना महंगा नहीं होगा जितना प्रिंट का होगा, उसका ठीक होगा। तो माय फर्स्ट एजेंडा इज अबाउट द हिंदुत्व, सेकंड इज अबाउट
प्रमोटिंग फायर ब्रांड हिंदू लीडर्स लाइक उमा दीदी हो गई, विनय कटियार जी हो गए, श्री मोहन भागवत जी भाई साहब हो गए, जो भी संघ के जो बड़े नेता हैं जिन्होंने आंदोलन में अपना जीवन दिया है, उनका वो रहेगा। आप लोग जलंधर से हैं तो मैनेजमेंट क्या हिंदुत्व के एजेंडे को हमारे को काटेगी तो नहीं? पता लगे वो लोग अकालीज के साथ उनका कुछ रहे। सर प्रेस लाइन ऐसी किसी के साथ नहीं होती। अच्छा, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो मतलब हमारा जो कमिटमेंट होगा वो ईमानदारी से चलेगा। बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ, बीच में अगर वो भी छापना चाहते हैं कुछ तो हम उसको भी नहीं रोकेंगे। राइट। जैसे आप बता रहे हो ना, अगर वो बोलेंगे कि हमारा भी कुछ ऐसा छापना है तो ठीक है, हम तो कंपनी है, बिल्कुल सबका ही चलेगा। बिल्कुल ठीक है। एंड माई थर्ड एजेंडा इज अबाउट थ्रेशिंग टू माई पॉलिटिकल राइवल। जैसे मैंने भी सुनवाया, एफएम में तो हमें लिबर्टी होती है सुनील जी कि हम पप्पू कह के या कुछ कह के एक हंसी मजाक का माहौल बना के अपने दुश्मन की बेइज्जती करते हैं, उसे गिराते हैं, बजाते हैं। जिसे कोई एक एफएम बोलते हैं ना कि बजाते रहो, तो हम किसी की तो बजा देते हैं, पर प्रिंट में उसको कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ आपके पास या हम क्रिएटिव्स दें तो वो चल जाएगा? क्रिएटिव तो चल जाएगा सर, पर उसमें कार्टूनिस्ट का ही रहेगा आपका मेरे ख्याल से। हाँ, उस हिसाब से सीरीज चलेगी। हाँ, वो चल पड़ेगा सैटरडे संडे, वो कोई इशू तो, लेकिन मेरे जो टारगेट राइवल्स होंगे वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल, बीजेपी के जो मेन दुश्मन है वही उनके टारगेट पे रहेंगे। अच्छा, तो वो हम आपको एक सीरीज डायरेक्टली तो नहीं होगा ना आपका उससे? कार्टून क्रिएट करके समथिंग, वो कोई इशू नहीं। कार्टून तो हमारे पेपर में वैसे भी छपते हैं, तो कुछ बड़ी खबर को दबाने के सवाल पर सुनील ने कहा, सर मैं इसमें कमिटमेंट नहीं कर सकता, कोशिश कर सकता हूँ। इसके बाद खबर के डाइवर्जन की बात पर सुनील ने कहा, हाँ वो कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं। वो मैं करवा दूंगा, डाइवर्जन थोड़ा सा वो करवा दूंगा, वो हो जाएगा। वैसे तो पिछले 3 साल में आपने हमारा बीजेपी का एक शासन देख ही लिया, ज़्यादा तो मुद्दे ऐसे नहीं है जिसमें जनता परेशान हुई है, लेकिन कभी कभी एक ऐसा मुद्दा आता है, ये मैं वो मांगने जा रहा हूँ जो मुझे नहीं मांगना चाहिए, पर मैं एज क्लाइंट ये थोड़ा स्वार्थी हो गया हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो जो आप कर सकते होंगे सुन लीजिए पहले। कई बार जैसे अमित शाह जी के लड़के की वो जय की अभी स्टोरी आई थी, उसकी कंपनी ने क्या 80-100 करोड़ कमा लिए। तो जब जो भी एंटी बीजेपी बड़ी स्टोरी कभी चले तो वो फ्रंट पेज पे उसको ना हो तो वो डाइल्यूट हो जाए, कभी 8वें पे या 9 पे, वो एक डाइवर्जन टैक्टिस हो जाए, क्योंकि उससे हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ इधर होती है। सर मैं इसमें कमिटमेंट नहीं कर सकता, पर कोशिश कर सकता हूँ। मतलब अगर बहुत बड़ी खबर हुई तो उसको कोई नहीं ला सकता। हाँ, बहुत बड़ी होगी तो वो तो नेचुरली, हाँ, लेकिन अगर नॉर्मल सी जैसे आती है बीजेपी को, वो मैं करवा दूंगा। डाइवर्जन थोड़ा सा वो करवा दूंगा, वो हो जाएगा। तीसरे पन्ने पे चलिए है वो कोई मतलब बहुत बड़ी खबर है ना, जैसे कुछ ऐसा तब तो कोई नहीं रोक सकता, वो फ्रंट पेज पे जाएगी। फ्रंट पेज पे फिर उस दिन के हमारा जैकेट लगा दो। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ। मान लिया हमने सैटरडे संडे वाला जैकेट लिया और बुधवार को स्टोरी खुल गई पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो आप सैटरडे का या संडे का जैकेट काट के उस दिन लगा दो हमारे वाला। ठीक। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगी। द राइट पॉइंट पहला कौन सा है? हिंदुत्व आगे ना कर। पुष्प ने सुनील को अपने एजेंडे की सारी बातें एक बार फिर से दोहराई और उसकी सहमति भी ली। तो ये मेरी 4 प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। आप यू गॉट द राइट पॉइंट। पहला कौन सा है? हिंदुत्व आगे ना कर, जो आपने हिंदू वाला, हाँ, पोलराइजेशन वाला। संघ के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका डिजिटल प्रेजेंस। हाँ। बाकी आपका वो जो आपके मतलब राइवल्स है, उनके खिलाफ जो भी है, मतलब आपको छापने के लिए जो वो चाहिए, मतलब डायरेक्टली नहीं होगा उनके ऊपर, लेकिन कार्टूनिस्ट टाइप जो भी है, पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट करना। और एक जो आपकी जो बीजेपी की मेन न्यूज आती है, जैसे कोई बड़ी न्यूज आती है, उसको डाइवर्ट करना जरूरी है। राइट। पंजाब केसरी में अपना एजेंडा चलवाने के लिए पुष्प ने पेमेंट का 40 से 50% हिस्सा कैश में देने की बात कही, जिस पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सुनील शर्मा ने कहा, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट वाला पॉइंट, आप अपना एक बार हायर अप से बात करनी पड़ेगी। हमारे पास ज़्यादातर जो पैसा है वो डोनेशन का है, तो हमारा इसमें कुछ ऐसा हो जाए 30-40 या 40-60, मतलब बाकी चेक से चला गया और RTGS हो गया, 40 या 50% कैश से डाइवर्ट कर दिया, वो ठीक है, कोई चक्कर नहीं है ना। उसमें जो भी कंपनी का मतलब रूल होगा, जो हम चेक से दे रहे होंगे उस पर GST लगवा दो। ठीक है, उस पर GST करवा दो। बाकी जो कैश जा रहा है, हमें बिल भी उतने के चाहिए जो हमने चेक से दिया, जो कैश से दिया वो आप जानते हो और मैं जानता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है,
उसको ऐसे कर ले, तो वो यही के लेवल पे हो जाएगा या आप थोड़ा ऊपर बात करोगे? नहीं सर, मैं जा रहा हूँ ना, कल जलंधर जाऊँगा तो मैं ये सारी बात कर लूँगा वहाँ से जाके। ठीक है, जो फाइनल होती है फिर मैं आपको टेलीफोन पे बता दूँगा। कैश डाइवर्ट होगा तो हमें चंडीगढ़ ऑफिस या यहाँ ही कैसे होगा? सॉरी, जो टोटल हमारा जो बजट है उसका कुछ चेक से है, तो कैश जो ट्रांसफ़र होगा वो इसी ऑफिस के थ्रू होगा या? सर ये जलंधर ऑफिस में जाएगा आपका डायरेक्ट। तो हम वहाँ से भी वो सीधा भेज सकते हैं? हाँ, जहाँ मर्जी से भेजो, कुछ नहीं, आपने जब भेजना तो मेरे को डिटेल भेज देनी है उसकी बस। कौन बंदा जा रहा है, बस किसको मिलना है उसने, इतना ही? मतलब कैश लेके जाना है हाँ। तो मेरे पास आना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हमारा सारा चेक में ना जाए। नहीं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसमें आप एक बार मुझे बता देना कितना, 50-50 कर दें? 50-50, हाँ 50-50 ठीक है। 50-50 कर देंगे। और 1.5 करोड़ का हुआ तो 75 कैश हो जाएगा, उसके थ्रू हो जाएगा, है ना? हाँ 50-50 ठीक है। पत्रकार पुष्प शर्मा की अगली मुलाकात पंजाब केसरी के चंडीगढ़ दफ्तर में सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव हरीश शर्मा से भी हुई। पुष्प ने इन्हें अपने हिंदुत्व एजेंडे के बारे में खुलकर बताया, जिस पर हरीश ने अपनी सहमति दी और कॉम्बो डील का ऑफर देते हुए बोले, कॉम्बो में सजेस्ट करूंगा आपको पंजाब केसरी एंड जगबानी इन पंजाब। आपको पंजाब केसरी प्लस जगबानी इन पंजाब। जगबानी, वी आर लुकिंग फॉर इनिशियली फॉर एटलीस्ट 3 months ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी, और इसमें कितने हमारा पंजाब, बेसिकली प्राइमरीली वी वांट टू कवर पंजाब। हाँ, द कोर ऑब्जेक्टिव इज टू कम बैक टू रिवाइव द हिंदुत्व एजेंडा एंड वी वांट टू बी पॉलिटिकल फोर्स, क्योंकि हम लोग तो स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, प्रचारक लोग, तो हम लोग तो संगठन के लोग हैं, लेकिन जो भी हमारा काम है वो तो संगठन के लिए है, बीजेपी के फायदा होना चाहिए। तो हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो पंजाब में बहुत डाइल्यूट है, हमें ऐसा लगता है। तो अब उसको आगे बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता, लॉर्ड कृष्णा, इस तरह को लेकर के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिंदुत्व का इंजेक्शन बढ़ाना है। तो उसमें या तो हम जाएंगे जैकेट पे जाएंगे या फिर 9वें पेज पे नहीं जाएंगे जब भी जाएंगे। ठीक है, तो इनिशियल जो बजट है वो 3 months का, इट इज़ 3 CR, दैट इज़ अ नंबर वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर ए टेस्ट एंड ट्रायल काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अभी तो पता नहीं है कि ये कितना अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन 3 महीने बाद इसका एनालिसिस करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इसमें हम कैसे आगे बढ़ें, आप मुझे ये बताएं, मुझे कॉम्बो में क्या क्या मिल सकता है? कॉम्बो में सजेस्ट करूंगा आपको पंजाब केसरी प्लस जगबानी इन पंजाब। जगबानी, जगबानी इज अवर डेली पंजाबी एडिशन। अच्छा, वो पंजाबी भाषा में पंजाबी है। ओके, पंजाब कैसे हिंदी? यस, इट इज हिंदी। तो जगबानी मैक्सिमम क्या मेनली सर्कुलेटेड इन ओनली पंजाब, और इसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। नेवर। ओके, बिकॉज वहाँ पे पंजाबी ज़्यादा चलती है। पंजाबी तो है, तो पंजाबी हिंदू हैं तो दे रीड पंजाबी। अच्छा, वो भी पंजाबी ही पढ़ते हैं? एक्चुअली ओके, नंबर 1, इट्स ऑल अबाउट द ऑन द जैकेट साइज। जैकेट आपका फ्रंट होता है, बैक भी होता है? फ्रंट, ओनली फ्रंट। ठीक है, तो उसमें श्रीमद् भागवत गीता, लॉर्ड कृष्णा विद यूनिवर्सल अपील विद हिंदुत्व पैकेजिंग। ठीक है, एंड सैफ्रॉन कलर मुझे चाहिए, ताकि वो हमारी जो एक लीनेज है सैफ्रॉन वाली। डिजाइन तो आई थिंक आपको करके देंगे तो बेटर होगा। हाँ, हमारा इन हाउस वो है। बिल्कुल राइट, लेकिन कलर मुझे सैफ्रॉन चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज ना हो। जो हमारा भगवा कलर है, जो कलर तो जो आप डिजाइन करके हमें देंगे दैट विल बी प्रिंटेड। अच्छा, उसकी कोई, अच्छा उसकी चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 months में तो हमारा श्रीमद् भागवत गीता, लॉर्ड कृष्णा है, एंड द सेकंड फेज we will be having the objective of polarizing the Hindutva kind of forces, especially targeting in Punjab. And how much budget for 3 months? About the budget size? Budget 3 CR. 3 years. Yeah. And we want to promote the Hindu firebrand leaders digitally और print में। हाँ, क्योंकि हिंदुत्व के आसपास ही घूमना चाहिए वो, उसको हम उस तरह से लेंगे। आपका फेसबुक और यूट्यूब है? Yes. तो उसका डिजिटल का उतना महंगा नहीं होगा शायद जितना प्रिंट का होगा। Yes. है ना, डिजिटल उतना महंगा नहीं होगा। एक जैकेट अगर लेते हैं तो वो कितना पर रेट क्या है? पंजाब एडिशन। हाँ जी, ये जो 3 एजेंडाज है, क्योंकि आपने इवेंट हटा दिया है तो हम इसके बाद पत्रकार पुष्प शर्मा ने हिंदू वोट बैंक के लिए खास पार्टी की छवि चमकाने के लिए पार्टी विरोधी खबरों को कैसे अखबार में छुपाना है ये भी कहा, और कैसे पार्टी के बड़े नेताओं की ब्रांडिंग करनी है इसके बारे में भी बताया।
पंजाब केसरी के सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव हरीश शर्मा ने हर बात बड़े ध्यान से सुनी और कोई आपत्ति नहीं जताई। नंबर 1 हिंदुत्व एजेंडा ऑफ पोलराइजिंग एंड सेकंड एजेंडा प्रमोटिंग फायर ब्रांड हिंदू लीडर्स एंड recap of हिंदुत्व इवेंट्स ऑन द वीकेंड। इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर लीजिए। रिकैप ऑफ हिंदुत्व इवेंट्स, जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा है तो मैं चाहता हूं कि हम उसकी एक सीरीज बना दें, पिक्टोरियल राइटिंग में, प्रिंट में, और वो छपे। जैसे उसमें किस तरह से वो कार सेवकों को गोली मारी गई, कैसे वो गिरे, हिंदुत्व का वो जो नारा है जय श्री राम। तो मैं चाहता हूं कि वो हिंदुत्व की जो एक बहाव है, एक चेन है वो लगातार हर हफ्ते हम जनता के बीच में इंजेक्शन डालते रहें। पर्टिकुलर फिक्स्ड है और उसका एक एपिसोड बना लेंगे। एपिसोड ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। तो उसमें क्या होगा, जनता के बीच में वो आंदोलन जिंदा रहेगा। और मेरी जो 2 लास्ट रिक्वायरमेंट है वो पर्सनल लेवल पे हरीश जी, वो मैं एक मित्र होने के नाते और एक क्लाइंट होने के नाते, वैसे तो मुझे नहीं ये इशारा बनना देना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं मांगते हुए, तो वो एक भाव है कि जैसे जय वाली स्टोरी थी अमित शाह के बेटे वाली, तो कभी अगर ऐसा, वैसे तो पिछले 3 साल में हमने कमीनापन कम ही किया होगा बाकियों की तुलना में, लेकिन अगर कभी जाने अनजाने में कोई ऐसा आ जाए तो वो डाइल्यूट हो जाए या वो अंदर के पेज पे चली जाए वो स्टोरी, मेन पेज पे उसको ना लगाया जाए, क्योंकि पंजाब में वरना हमारे ऊपर और कीचड़ पड़ेगा। वो थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और जो लास्ट चीज़ है वो सोशल मीडिया वाली। सोशल मीडिया में हमें प्रमोशन और डिजिटल प्रमोशन। अभी आपकी क्या प्लानिंग है फिलहाल? आप बताइए, आप जब से चाहिए से फ्रीज करिए। इस डील का एक बड़ा हिस्सा कैश में देने की बात पर पंजाब केसरी के सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव हरीश शर्मा ने कहा कि वो मैं बात कर लूंगा। एक बार आप, हाँ, इससे भी याद आ गया कि हमारा जितना पेमेंट होगा या जो भी फ्रंट फेस होगा वो श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति चंडीगढ़ होगी। अच्छा, है ना? कोई पॉलिटिकल फ्रंट कोई चीज़ हम बोलेंगे भी नहीं, और ना हम, ये तो पर्सनल मैंने बता दिया भाव, लेकिन हम हर जगह समिति के थ्रू पैसा राइट आउट करेंगे। व्हाट माय पॉइंट। और अगर हम इसमें हमारे पास जैसे डोनेशन का थोड़ा ज़्यादा रहता है तो कुछ कैश एडजस्टमेंट का कुछ रास्ता बन सकता है। आप इफ़ यू टॉक टू योर फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो अगर आपके लेवल पे कुछ हो सकता है तो, या पूरा ही चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू होना चाहिए। वो मैं बात कर लूँ। एक बार आप ऑन पर्सनल थोड़ा सा डिस्कस। और दूसरी चीज़, कॉम्बो प्लीज़ थोड़ा अच्छा बनाइए। वो उस केस में हो सकता है जैसे आपका एडिटोरियल जाएगा ना। हाँ, लेकिन उस पर सर एक चीज़ ADVT ना लिखा जाए। नथिंग, वो जस्ट लाइक न्यूज़ आइटम। ठीक है, एक लंबा चलना है हरीश जी। ठीक है, और हमें इसमें पैसा नहीं आएगा। ये च्यवनप्राश तो बेचना नहीं है कि कल को बिकेगा तो 12 रुपए मुझे डब्बे में मिलेंगे। ये तो एक विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये संगठन का काम है। तो इस पैसे का संगठन के हित में काम होना है। पत्रकार पुष्प शर्मा ने इसके अलावा दिल्ली में पंजाब केसरी के मार्केटिंग हेड राजेंद्र कुमार के साथ और उनके बॉस असलम सिद्दीकी से भी बात की। उन्होंने बताया कि वो एक खास पार्टी के हित में खबरें छपवाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पुष्प खबरों के जरिए ऑपोजिशन पार्टियों और उनके बड़े नेताओं का कैरेक्टर एसोसिएशन भी करवाना चाहते हैं। ये आपके पूरे खेत में गंदे की वजह से साहब ये खेत में, इसीलिए चिंता मत करो, हमारी सरकार आई तो पूरे खेत में फर्श बनवा देंगे। क्या आप अपना वोट लीडर्स पे बर्बाद करेंगे? अपने वोट की कदर कीजिए, सही पार्टी के लिए वोट कीजिए। कर्नाटका की जनता के लिए श्री भगवत गीता समिति द्वारा जनहित में प्रसारित। ये पॉलिटिकल है बिकॉज आर कोर एजेंडा इज टू थ्रैश आर पॉलिटिकल राइवल्स। उनकी बजाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, बबुआ और समथिंग बिकॉज, और हाँ ये चलता है इनका। तो देर आर सर्टेन निक नेम्स लाइक बबुआ, पप्पू एंड बुआ एंड बहन जी। सो वी विल ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दोज थिंग्स एंड वी विल ट्राई टू मेक फन ऑफ दोज पॉलिटिशियंस so that we can get the political dividend out of the center excesses. ठीक है, so initially the budgeting is around 30 lakh for 3 months and for 10% stretchable side plus minus. अगर 30 के वो 33 से 34 हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 27 हो रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है, 10% ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है।
मेरी जो ब्रॉड रिक्वायरमेंट है वो है प्रिंट में तो सिर्फ है जैकेट साइज। अगर हम जैकेट में हैं तो हमारा 7th या 8th पेज में वी आर नॉट इंटरेस्टेड। जैकेट मीन्स फिर आपको फ्रंट की चाहिए होगा या फिर आप इंटरेस्ट पर ले सकते हैं? हाँ, वो जो भी वो आप कॉम्बो बना देंगे डिजिटल का और इसका। तो जो जैकेट आपको कौन सा फ्रंट पेज ही चाहिए या फ्रंट और बैक वाला? फ्रंट पे, ठीक है। और जो हमारा इसमें रहेगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है ब्रॉडली, इन सिंगल्स की तो आपको जरूरत नहीं है, जब मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा डिज़ाइन तो आप अपना देंगे ना बनाकर? सब वर्ड सब है क्रिएटिव ना, प्रिंट वाले ना। बातचीत के दौरान पंजाब केसरी के मार्केटिंग हेड ने डिस्काउंट देने की भी बात कही और हिंदुत्व के एजेंडे से जुड़ी हर मांग को मानने के लिए भी राजी हो गए। लेकिन बी श्योर कि पहले भाई साहब वो 3 महीने में सॉफ्ट हिंदुत्व, लेकिन बाद में हम बजाएंगे इनके अच्छे से, तो वो तब ये देखना पड़ेगा फिर वो पॉलिटिकल में डिस्काउंट वाली प्रॉब्लम आएगी। वो तो 100% प्रीमियम पे जाएगा। हम लोग वही बोल रहे हैं हाँ, ना, उसमें प्रॉब्लम आएगी। संगठन आर्थिक रूप से हम दिखने में बाबा टाइप पैसे की व्यवस्था कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो रहेगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में जो आपका सिंपल होगा ये रिलीजियस में हमारा चला जाएगा, हाँ, इसमें तो हम डिस्काउंट ले सकते हैं। नहीं फिर आगे क्योंकि पॉलिटिकल टच हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। इसमें सैफ्रॉन कलर आ जाएगा, हाँ है ना। हमारा जो हिंदुत्व वाला एजेंडा वो चलता रहे। एक बार डिज़ाइन दे दीजिएगा, हाँ, जो आपका क्रिएटिव हो वो दे दीजिएगा, ठीक है। अप्रूवल देना पड़ेगा। But when the heat gets momentum and presumably that would be around March, May, June, गर्मियों के बाद वो हीट शुरू होएगा, है ना। तो जो वो will galvanize the entire scenario and then we will try to दिसंबर और जनवरी, yes, December tentatively, वो 6 महीने we will try to galvanize the entire scenario and we will be very brutal, very dirty, very nasty so that we can polarize the entire scenario and get the political dividend, ठीक है। तो उसमें वही सब मेरी 2-3 रिक्वायरमेंट हैं। पहला तो हिंदुत्व एजेंडा रहेगा और उसके अलावा फिर सेकंड रहेगा डिजिटल के ऊपर प्रमोशन ऑफ आर फायर ब्रांड हिंदू लीडर्स, जैसे उमा दीदी हो गई, विनय कटियार जी भाई साहब हो गए और श्री मोहन भागवत जी भाई साहब हो गए, जो संगठन के व्यक्ति हैं, उन्हीं का प्रमोशन रहेगा। जब भी वो लखनऊ या आसपास का प्रवास कर रहे हों तो उनके वीडियोस डिजिटल पे चले जाएँ, तो वो रहेगा। जो तीसरा जो हमारा है वो रहेगा थ्रेशिंग टू माई पॉलिटिकल राइवल्स, जो हम जिंगल सुनाए। तो उसमें हमने जिनकी बजानी है उनमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी हो गई, हाँ, बहुजन समाज पार्टी और जो भी है उनका रहेगा। तो ये ब्रॉडली 3 एजेंडा हैं इनको। पहला तो आपका डिस्काउंटेड रहेगा, ठीक है। सेकंड से और थर्ड से, सेकंड में पता करना पड़ेगा, थर्ड में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। में पे जाते हैं, नॉट एन इशू। अगर हो जाए तो जाए, ठीक है, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गेटिंग पेमेंट का बड़ा हिस्सा कैश में देने के सवाल पर पंजाब केसरी के असलम सिद्दीकी ने बेहिचक कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात करता हूँ पहले क्या हो सकता है। चलता ही है। मैं बात करता हूँ पहले क्या हमारे लिए हिंदुत्व के एजेंडा पे चलना है तो उसको रहेगा, ठीक है भाई साहब। और इसमें 60-40 का अगर हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गेटिंग डोनेशन। 60 कैश हो जाएगा, 40 उसमें हो जाएगा। 2014 में भी तो रहा होगा ना जब इलेक्शन हो गए होंगे, तो वो सब तो चलता ही है। मैं बात करता हूँ पहले क्या हो सकता है, ठीक है। आपको बता दें कि पंजाब केसरी हिंदी का अखबार है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत 13 सेंटर्स से प्रकाशित होता है। इसके अलावा पंजाब केसरी समूह के हिंद समाचार नाम से उर्दू भाषा, जगबाणी नाम से पंजाबी भाषा और नवोदय टाइम्स नाम से अन्य अखबार भी हैं। इसके अलावा पंजाब केसरी ग्रुप के इंटरनेट पर डिजिटल पोर्टल्स, वीडियो चैनल्स, बॉलीवुड केसरी, क्रिकेट केसरी और शायरी नाम का एक फेसबुक पेज भी है जिसे लाखों लोग पढ़ते हैं। ऐसे में किसी खास एजेंडे या प्रोपेगेंडे को चलाकर ये समूह बड़ी जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है।